আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওটি হচ্ছে যে ভাষান্তরের রোহিঙ্গারা ইন্ডিয়ার মিডিয়াতে কিভাবে আসলো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার প্রতি একটি রিকোয়েস্ট, সেটা হচ্ছে যারা ইন্ডিয়াকে ভালোবাসেন এবং যারা ইন্ডিয়াকে ভালোবাসেন না সবার প্রতি একটি রিকোয়েস্ট, সেটা হচ্ছে ভিডিওটি না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন যে ইন্ডিয়া জাতি যাদেরকে আমরা অন্তর থেকে ভালোবাসি, যাদের প্রশংসা আমরা সব সময় করে আসছি, তারা আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে তারা কী চক্র চালাচ্ছে। তো চলুন দেখে আসি। তবে আরেকটি কথা, সেটা হচ্ছে যখন মায়ানমারের রোহিঙ্গাদেরকে খুবই অত্যাচার করে যখন সারা বিশ্ব দেখছিল, কোনো বিশ্বের মধ্যে কোনো একটি দেশই তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছিল না। ঠিক সেই মুহূর্তে যখন বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়েছে, বাংলাদেশের জনগণ আশ্রয় দিয়েছে, এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মায়ানমারদের জন্য অর্থাৎ রোহিঙ্গাদের জন্য সুন্দর একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে দেখেন ইন্ডিয়ার মিডিয়াগুলো আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অর্থাৎ বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের মধ্যে কিভাবে তুলে ধরছে। তারা আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে তুলে ধরছে যে আমরা নাকি তাদের জন্য মৃত্যুর একটা ফাঁদ পেতেছে সরকার, অর্থাৎ তাদের জন্য তারা যেন বাসাঞ্চরে যেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যায়, সেই একটা ব্যবস্থা নাকি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা করছে। যদিও ভিডিওটা হিন্দিতে, তো আপনারা যারা হিন্দি বুঝেন না তাদের কাছে অনুরোধ হইল তারা অন্য কারো কাছে হলেও সাহায্যনীয় হলো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে বোঝার চেষ্টা করবেন। আরেকটা কথা বলতে হয়, যারা আমরা ইন্ডিয়াকে ভালোবাসি এবং যারা আমরা আওয়ামী লীগের খুব ভক্ত দেখাই যে আমি আওয়ামী লীগের খুব ভক্ত, আওয়ামী লীগের জন্য জান প্রাণ দিতে পারি, আজকে যখন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কথা বলছে এই নিউজ 24-এ ইন্ডিয়ার একটি চ্যানেলে, তখন আপনারা কি বলবেন? দেখেন, আজকে যদি এই কথাগুলো কোনো মোল্লা বা কোনো হুজুররা করতো, তাহলে কেউ বলতো কি ভাসিয়ে দেবো নদীতে, আবার কেউ বলতো কি ঘাড় মটকে দেবো। তো এখন আপনারা কি বলবেন? হয়তো তাদের কোনো ভাষা নেই। দেখবেন কোনো ব্যাঙ ঘরের চিপায় থাকে, এগুলো বাইরে এসে শব্দ করার কোনো তো সাহস হয় না এদের। তো এদেরও হচ্ছে একই অবস্থা। আজকে যখন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কথা বলছে, তো তাদের কোনো ভাষা নেই, তারা একদম চুপ হয়ে গেছে। আজকে যদি হুজুররা বা কোনো অন্য রাষ্ট্রের মুসলমানও এগুলো কথা বলতো, তো তাদের দেখতেন মুখ উঁচু করে বলতো ওদের ভাসিয়ে দেবো অথবা ঘাড় মটকে দেবো। কিন্তু এখন তাদের মুখের ভাষা কোথায় গেল? তো সবার প্রতি একটি রিকোয়েস্ট, সেটা হচ্ছে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এবং যারা আমাদের দেশনেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ভালোবাসেন, তাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে তারা এই ভিডিওটা যেভাবেই হোক জননেত্রী শেখ হাসিনা চোখে পড়ার ব্যবস্থা করে দেবেন এবং ভিডিওটি সবাই শেয়ার করবেন। দেখেন ইন্ডিয়া আমাদেরকে কতটুকু নিচে নামাচ্ছে এবং ইন্ডিয়া আমাদের বাংলাদেশকে কতটুকু ছোটো করে সমাজের মধ্যে তুলে ধরছে এবং আমাদের কতটুকু ক্ষতি করছে। যদিও এরা আমাদেরকে উপরে ভালোবাসে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তো সবার কাছে একটি অনুরোধ, ভিডিওটি শেয়ার করবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। इस टापू पर बांग्लादेश हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को शिफ्ट कर रहा है। अगर बाढ़, बारिश या चक्रवात आया तो यही टापू हजारों रोहिंग्याओं की कब्र बन जाएगा। रोहिंग्याओं की जिंदगी पर तैरते टापू का खतरा। बारिश से जल समाधि ले लेगा टापू। गाद वाले आइलैंड पर कैसे बचेगी जान? समंदर के बीचों बीच ये मौत का वो टापू है जिस पर हजारों जान अटकी हुई है। चक्रवात किसी भी वक्त हजारों लोगों को निगल सकता है। किसी भी वक्त हजारों जिंदगियां पानी में जल समाधि ले सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में यही वो मौत का टापू है जिस पर बांग्लादेश की सरकार अब तक हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को शिफ्ट कर चुकी है।
लाखों लोगों को यहाँ बसाने की योजना है। इनके लिए बाकायदा पूरी बस्ती बसाई गई है, लेकिन इन लोगों की जान से खेल रही बांग्लादेश सरकार के पास न इसके लिए कोई योजना है, न इन लोगों की सहमति। बांग्लादेश सरकार इन शरणार्थियों को भासन 4 नाम के टापू पर भेज रही है। हाल ही में 7 नावों में 1640 रोहिंग्या मुस्लिम इस टापू पर पहुंचे। 1642 रोहिंग्या लोगों का पहला जत्था 4 दिसंबर को भासन 4 पहुंचा था। इन लोगों को इस टापू पर पहुंचाने का काम बांग्लादेश की नेवी कर रही है। अब तक बांग्लादेश हजारों लोगों को इस मौत के टापू पर शिफ्ट कर चुकी है। ये वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो म्यांमार में हुई हिंसा से बचने के लिए बांग्लादेश पहुंचे थे। इन्हें उम्मीद थी कि बांग्लादेश सरकार इनकी जान बचाएगी और इनकी मदद करेगी, लेकिन बांग्लादेश सरकार के एक फैसले ने इनकी जान को आफत में डाल दिया है। दरअसल बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला किया है कि इन शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी के उस टापू में भेज दिया जाएगा जो चक्रवात से कभी भी डूब सकता है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में करीब 8 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के बाद बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इन शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में बने भासन 4 नाम के टापू पर भेजने का फैसला किया। लेकिन ये भासन 4 नाम का टापू इतना खतरनाक क्यों है, पहले ये जानिए। भासन 4 आइलैंड बंगाल की खाड़ी पर बसा है। यह आइलैंड हिमालय की गाद से बना हुआ है। इस आइलैंड को 20 साल पहले समुद्र में खोजा गया था। इस आइलैंड पर अक्सर बाढ़ आती है। मॉनसून के वक्त भासन 4 नाम का ये टापू पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। बांग्लादेश ने भासन 4 नाम के इस टापू पर लाखों शरणार्थियों को तो भेज दिया, लेकिन बांग्लादेश ये भूल गया कि अगर बाढ़, बारिश या चक्रवात आया तो यहां पर इन लाखों लोगों का क्या होगा। ये गरीब शरणार्थी कहां जाएंगे, इनकी जान कैसे बचेगी। बांग्लादेश ने हाल ही में इस जानलेवा टापू पर 1640 रोहिंग्या मुसलमानों को 7 नावों में भरकर भेजा, लेकिन इनमें से ज्यादातर रोहिंग्या वो हैं जिन्हें उनकी मर्जी के बिना यहां पर रखा गया है। बांग्लादेश सरकार इस आइलैंड पर 1000 से ज्यादा बिल्डिंग बना रही है। कई लाख रोहिंग्या मुसलमानों को यहां ठहराने की योजना है। इसके लिए इस टापू पर घर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन शेख हसीना सरकार ये भूल गई कि इस आइलैंड पर बाढ़ और साइक्लोन का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। अगर साइक्लोन या बाढ़ आई तो यहाँ लाखों रोहिंग्या मुसलमान कहां जाएंगे। दरअसल रोहिंग्या शरणार्थियों को मौत के इस टापू पर लाने की ये योजना साल 2017 से चल रही है। साल 2018 में शेख हसीना ने इस मुद्दे पर कहा था कि इन शरणार्थियों को सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। ये जो एक तरीके का ये जो बांग्लादेश का रोहिंग्या रेफ्यूजीज को रीसेटल करने का प्लान है, इसमें कतई भागीदारी रोहिंग्या सेटलमेंट जो सीख कर रहे हैं उनकी नहीं है। इसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ह्यूमन कंडीशंस को लेकर। और सभी जगह से जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से हमें पता है कि उस आइलैंड की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, काफ़ी फ्लड प्रोन, सुनामी प्रोन एरिया है वो। इस ऐसे हालात में अगर हम रोहिंग्या रेफ्यूजीज को वहां पे भेज रहे हैं तो ये एक बहुत ही गलत निर्णय है। लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही बांग्लादेश सरकार हर काम बेहद गुप्त तरीके से कर रही है। इस टापू पर न कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता जा सकता है, न ही कोई जर्नलिस्ट। हर काम इतना सीक्रेट रखा गया है कि लाखों लोग मारे भी गए तो किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगेगी। कॉक्स बाजार के पास तट पर बने हजारों कैंप में इस वक्त भी लाखों शरणार्थी जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। न तन पर कपड़े हैं, न खाने को रोटी, न साफ पानी। बांग्लादेश सरकार इन लोगों को बड़े घर और सुविधाओं का वादा कर इन्हें मौत के तैरते टापू पर पहुंचा रही है। हालांकि बांग्लादेश सरकार दावा करती है कि भासन 4 पूरी तरह से सुरक्षित है। टापू पर सभी सुविधाएं हैं, झीलें हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो आपदाओं का सामना कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में रहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने वाला म्यांमार भी इन्हें एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करना चाहता।
म्यांमार ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश इस समुदाय को खुशी खुशी अपने यहां बसने नहीं देना चाहता। म्यांमार से जान बचाकर बांग्लादेश पहुंची लाखों रोहिंग्याओं को लगने लगा था कि उनकी जान बच गई है, लेकिन बांग्लादेश ने जिस तैरते टापू पर इन हजारों जिंदगियों को बसाया है, उससे इनकी जिंदगी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।